Hello everyone, welcome to today's class. In today's lecture, we are going to study about transportation in plants. Okay, so let us begin. As we have already studied that plants take in carbon dioxide and photosynthesize the energy and this energy is stored in the leaves. Okay, so these materials, the food prepared in the leaves and the water which comes from the soil, these need to be transported in the entire body of the plant. So how does this transportation system take place? So what happens that for the plant, soil is the nearest source of raw materials like nitrogen, phosphorus. These all raw materials comes to the is received by the plant through the soil, through roots. So the plant is the distance between, first of all, the soil contacting organ is the root and the chlorophyll containing organ are the leaves. So if the distance between the soil contacting organ, that is the roots, and the chlorophyll containing organ, that is the leaves. So if the distance between the roots of a plant and the leaves is very short, is very small, so the process of transportation is easy and it can happen through diffusion only. Okay, so the water, the minerals can directly diffuse from the roots to the leaves. Diffusion से ही root से leaf तक पहुंच सकता है if the distance between roots and leaves is small. That is for the shorter plants. जो short plants होते हैं तो उनमें क्या होता है, by diffusion alone the transportation process can be achieved. But for the plant, for the plant body, for which the soil contacting organ and the chlorophyll containing organ are at a very large distance, that is for the tall trees or for the bigger plants, the diffusion process alone is not enough, is not sufficient. So what happens, the plant transport system needs to move two things. First is the water and second is the food. Okay, दो चीजें transport करना जरूरी है प्लांट को, water and food. So this water and food, it cannot be transported by the process of diffusion. So there are different processes for which from which this transportation process takes place. Okay, so first of all, we are going to study the transport of water. How does the transportation of water takes place in plants? So the first is the transport of water. The transportation of water कैसे होता है? Now we have already studied about two tissues, xylem and phloem. ठीक है, दो tissues के बारे में हम पढ़ चुके हैं, xylem and phloem. Xylem mainly transports water and phloem mainly transports food. So हम जब transportation of water की बात करेंगे, so we will be talking about the xylem tissue, and when we talk about the transportation of food, we will be considering the phloem tissue. Okay, so in the xylem tissue, the seed tubes, we have already studied about the vessels. Seed tubes are in phloem. In the xylem tissue, the vessels and the trachees. We have already studied about the vessels and trachees. And in the phloem tissue, we have companion cells and seed tubes. Okay, so we will be talking about companion cells and seed tubes in the phloem, and in xylem tissue, we will be talking about vessels and trachees. So in the xylem tissue, the vessels and trachees of roots, stems and leaves are interconnected. Okay, so in the xylem tissue, the vessels and trachees of roots, stems and leaves are interconnected. मतलब क्या है कि जैसे सपोज हमारे घर में जो वाटर सप्लाई होता है, ठीक है, तो जितने भी जो हमारा जो मेन पाइपलाइन है उससे हमारे घर के सारे टैप्स जो है दे आर इंटरकनेक्टेड, वो सारे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, आपस में कनेक्टेड होते हैं. सिमिलरली जो वाटर सप्लाई है वो कहाँ से है, रूट से है.
और वो वाटर कहाँ तक जाना है, स्टेम्स तक, लीव्स तक, सब हर जगह जाना है, हर बॉडी पार्ट में, हर प्लांट पार्ट में. सो द जाइलम टिश्यू, वेसल्स एंड ट्रैकीज, जो रूट्स, रूट, स्टेम्स और लीव्स के होते हैं, वो सारे उन सबके जाइलम टिश्यूज जो है, वेसल्स एंड ट्रैकीज, वो सबके क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ताकि वाटर जो है वो इजीली हर पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंच जाए. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस एट द रूट्स, in the roots, the cells in contact, जो सेल्स, ठीक है, सॉइल के साथ कांटेक्ट में है, वो क्या करते हैं, कांटेक्ट विद द सॉइल, टेक अप आयंस, सॉइल में से क्या करते हैं, आयंस ले लेते हैं. नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लोअर क्लासेस अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट इज अ स्पॉन्टेनियस movement of solvent from a region of low concentration of solute to high concentration of solute. ओके. सो जो आयन है वो किसमें डिजोल्व है, इन वाटर, वाटर में डिजोल्व है. तो जो आयन है, ऑस्मोसिस क्या बोलता है कि इट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, सॉल्वेंट कहां से मूव करता है, जहां पर सल्यूट का कंसेंट्रेशन लो हो वहां से, टू दिस हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट. ठीक है. मतलब अगर सपोज इस केस में वाटर इज द सॉल्वेंट एंड आयंस आर द सल्यूट, आयंस जो है वो उसमें डिजोल्व है. तो रूट्स ने क्या किया, जो रूट सेल, रूट्स के सेल्स थे विच वर इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, तो रूट्स के जो सेल्स थे उन्होंने क्या किया, आयन ले लिए. ठीक है. सारे आयन ले लिए. अब सारे आयन जब उसने ले लिए तो जो कंसेंट्रेशन ऑफ आयन है वो रूट्स में क्या हो गई, हाई हो गई. ठीक है. कंसेंट्रेशन ऑफ आयन जो है वो रूट्स में क्या हो गई, हाई, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस. वाटर जो है वो कहां पर है, सॉइल में. ठीक है. वाटर है सॉइल में, वाटर इज इन द सॉइल. जब रूट्स ने सॉइल से सारे आयंस ले लिए तो रूट्स के पास हायर कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस हो गया एंड सॉइल के पास लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस. एंड वी नो दैट बाय ऑस्मोसिस जो सॉल्वेंट है वो कहां से कहां मूव करता है, फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट. मतलब जो वाटर है वो कहां से मूव करेगा, फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ आयन, मतलब फ्रॉम सॉइल, टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ आयन, मतलब रूट. सो द वाटर मूव्स फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट्स. Okay, this is due to the gradient in concentration of ions. Okay, but this process alone is not capable, not enough, not sufficient. Okay, ये process, ये pressure alone is not sufficient for the transport of water in the entire plant body. So there is another process, there is another strategy to move water. So what is that? So the other process for the transport of water is transpiration. Now what is this transpiration? So the transpiration, what is the definition of transpiration? It is the loss of water from the aerial parts of the plant. Aerial parts mean the parts which are in contact with air. Okay. So what happens that, as we have already studied, that when the stomata opens and closes, so while the stomata opens, some water is also lost during the exchange of gases through evaporation. Okay. So the water is lost from the stomata and is replaced by the water from the xylem vessels. So how is it replaced? The evaporation of water from the cells of a leaf. Okay, लीफ के सेल्स में से द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ लीफ. ठीक है. जब वाटर एक लीफ के सेल्स में से इवेपोरेट होता है, जब स्टोमेटा ओपन होता है,
तब क्या होता है, ये इसकी वजह से वाटर लॉस्ट हो गया, ठीक है, वाटर इज लॉस्ट. सो ड्यू टू दिस लॉस ऑफ वाटर अ सक्शन इज क्रिएटेड, क्रिएट्स अ सक्शन. ठीक है, जैसे अगर हम स्ट्रॉ लेते हैं, ठीक है, हम किसी भी चीज में स्ट्रॉ किसी जूस में डिप करते हैं एंड वी स्टक, तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रॉ में जो एयर है उसे हम स्टक कर लेते हैं, उसकी वजह से जो लिक्विड है नीचे जो जूस है वो क्या होता है, उसमें राइज हो जाता है, फिल हो जाता है, क्योंकि एयर जितनी भी थी वो उसमें से निकल जाती है. सिमिलरली जब लीफ में से सेल्स ऑफ लीफ, जो लीफ के सेल्स में से जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ लीफ, एक लीफ के सेल्स में से जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है, सो व्हाट हैपेंस, अ सक्शन इज क्रिएटेड. अब इस सक्शन की वजह से क्या होता है, विच pulls the water, कहां से पुल करता है, from the cells of the xylem cells of the root, creates a suction which pulls water from the xylem cells of roots. ठीक है, रूट्स के जाइलम सेल से क्या करता है, वो वाटर को पुल करता है. ओके, जो सक्शन है उसकी वजह से वाटर पुल हो जाता है, ऊपर की तरफ खिंच जाता है, कहां से, रूट्स में से. और ये जो लॉस ऑफ वाटर है जो लीफ में से और एरियल पार्ट में से हो रहे हैं, दिस लॉस ऑफ वाटर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन एंड दिस पुल इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन पुल. क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से. So this is known as the transpiration pull. इसे क्या बोलते हैं, transpiration pull. Okay, so transpiration helps in, transpiration किसमें help करता है, transpiration helps in first of all, किसमें help करता है, water के transport में. Okay, the absorption and upward movement of water, the absorption and so first is the absorption and upward movement of water, and water के साथ साथ उसमें जो minerals dissolved है, okay, the upward movement of water as well as the minerals dissolved in it. From roots में से upward movement of water में help करता है. And second, transpiration also helps in temperature regulation. ठीक है, पूरे प्लांट का जो टेम्परेचर रेगुलेशन है उसमें भी वो हेल्प करता है. सो ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन टू थिंग्स, द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एज वेल एज द मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन वाटर. वाटर के साथ साथ जो उसमें मिनरल्स डिसॉल्व्ड है वो भी रूट्स से एंटायर प्लांट बॉडी में मूव करते हैं. एंड सेकंड इज द टेम्परेचर रेगुलेशन. नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द डे टाइम जब स्टोमेटा ओपन होता है. ओके, सो ड्यूरिंग डे स्टोमेटा ओपन, ठीक है, स्टोमेटा ओपन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल होता है. स्टोमेटा जब ओपन होगा तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा. जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो सक्शन क्रिएट होगा. सक्शन क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, वाटर ऊपर की तरफ राइज करेगा, तो ट्रांसपिरेशन पुल होगा. सो ड्यूरिंग द डे टाइम जब स्टोमेटा ओपन रहता है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, तो स्टोमेटा ओपन होता है, उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन पुल होता है. सो ड्यूरिंग डे द ट्रांसपिरेशन पुल इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर वाटर. ठीक है, वाटर के लिए मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है वाटर के मूवमेंट के लिए ड्यूरिंग द डे टाइम. Okay, so this is all with the transport of water. Now we are going to study about the transport of food. So our next topic is transport of food and other substances. We have already studied how water is transported in plants. Now we will be studying how food and other substances are transported in plants. We have already studied about the process of photosynthesis. The products of photosynthesis are produced, are formed in the leaves, because leaves perform this process of photosynthesis. So the product of photosynthesis needs to be transported from the leaves to other part of the plants. So this transport, the transport of soluble products of photosynthesis, जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट्स बने हैं उसका जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है, दैट प्रोसेस, दैट ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज
translocation. It is known as translocation. And this translocation, this occurs in the phloem. फ्लोएम में होता है, इन द फ्लोएम टिश्यू. और फ्लोएम में भी कहां पर होता है? इन द सीड ट्यूब्स, containing adjacent companion cells. ठीक है, फ्लोएम में भी कहा? इन द सीड ट्यूब्स दैट कंटेन्स एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स. ठीक है, सीड ट्यूब्स में जिनके पास क्या हो? विद एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स हो, वहां पर ये ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है. व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? इट इज द ट्रांसपोर्ट होना किसका? जो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट्स बने हैं, जो फूड बना है फोटोसिंथेसिस में, उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो प्लांट में होता है, हर पार्ट में जो होता है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन. और ये ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये कौन करवाता है? फ्लोएम टिश्यू. और फ्लोएम में भी कौन? इट हैपेंस, इट अकर्स इन द सीड ट्यूब्स विद एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स, जिसमें क्या हो? एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स हो. अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फूड के अलावा और भी फ्लोएम जो है, फ्लोएम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड्स करता है, एंड अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो. ओके, सो फ्लोएम जो है वो प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को तो ट्रांसपोर्ट करता ही है, फूड को तो ट्रांसपोर्ट करता ही है, उसके साथ साथ अमीनो एसिड्स एंड सम अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो. ये सारे सब्सटेंसेस कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम. अब ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कहां करता है? तो दीज सब्सटेंसेस, ये जो सब्सटेंसेस है, दीज सब्सटेंसेस आर डिलीवर्ड टू, डिलीवर कहां करेगा? तो दीज आर डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन. ठीक है, जो क्या करते हैं? फूड को और इन सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं. अब ये स्टोरेज ऑर्गन कौन है? दीज आर द रूट्स, stems, fruits and other growing organs. तो ये सारे ऑर्गन्स तक फूड क्या होता है? ट्रांसपोर्ट. तो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है, उसका नाम क्या है? ट्रांसलोकेशन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि ट्रांसलोकेशन कहां होता है? ये ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? वेयर? तो कहां होता है? इट अकर्स इन द फ्लोएम. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कि फ्लोएम और क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है फूड के अलावा? तो क्या करता है? अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस. और ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट होकर ये चीजें कहां जाएगी? तो कहां जाएगी? रूट्स में, स्टेम्स में, फ्रूट्स में एंड अदर ग्रोइंग ऑर्गन्स. यहां ये सब चीजें ट्रांसपोर्ट होती है. ओके, नाउ द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम. अभी जो ट्रांसलोकेशन है फ्लोएम में, तो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन कैसे कर पाता है? बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी. ठीक है, सो द ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ठीक है, जहां पे हम ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज करेंगे तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या बोल रहे हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है, जो फ्लोएम में हो रहा है, ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम is achieved by utilizing energy. ठीक है, एनर्जी अगर यूटिलाइज करेंगे तो ही वो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा. जैसे अगर हमें कोई भी सब्सटेंस एक जगह से, अगर कोई चीज है, वो बैग है, हमें यहां से कहीं दूर ट्रांसपोर्ट करना है, भेजना है, तो क्या लगेगी? एनर्जी. हम उस बैग को उठाएंगे तो हमें भी एनर्जी लगेगी, हम उसे कहीं छोड़ के आएंगे तो हमारी भी एनर्जी लगेगी, और जो व्हीकल हम यूज कर रहे हैं वो भी कुछ एनर्जी स्पेंड करेगा. तो किसी चीज को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसपोर्ट करने में कुछ एनर्जी लगती है. तो जो ट्रांसलोकेशन है, जो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम कैसे होता है? बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी. तो एनर्जी को यूटिलाइज करके फ्लोएम क्या करता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन कर पाता है. ठीक है, जैसे क्या होता है? सुक्रोज जो है, सुक्रोज विच इज ट्रांसफर्ड इन द फ्लोएम, वो क्या करता है? यूजिंग एनर्जी. अब ये एनर्जी कहां से लाता है? फ्रॉम एटीपी. ठीक है, तो सुक्रोज जो फ्लोएम में ट्रांसफर होता है, वो कैसे होता है? बाय यूजिंग एनर्जी, बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी. और वो एनर्जी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एनर्जी कहां से आती है? फ्रॉम एटीपी. एनर्जी एटीपी से आती है. ओके, अब ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन, वो कैसे होता है? फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है?
materials are transported into phloem, ठीक है, ठीक है। तो जो मटेरियल्स है जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स है वो कहां पर ट्रांसपोर्ट हो गए, इनटू द फ्लोएम, और वो कौन से प्रोडक्ट्स है, सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सॉल्यूबल मतलब किसमें सॉल्यूबल, वाटर में, ठीक है। मतलब ये जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स है ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये क्या है, दिस इज द सल्यूट, ये क्या है, सल्यूट है। तो ये जो मटेरियल्स है जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स है जो सल्यूट है फोटोसिंथेसिस के, वो कहां ट्रांसपोर्ट हो गए, इनटू द फ्लोएम। अब फ्लोएम में आ गए तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्लोएम में जो सल्यूट का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। सो दिस इंक्रीजेस द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम में क्या होता है, सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के, सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट है जो सॉल्यूट है जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हुए हैं वो कहां ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, फ्लोएम में, दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर में भर गए। अब फ्लोएम के अंदर क्योंकि वो भर गए तो इसलिए फ्लोएम में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, इंक्रीज। मतलब सपोज ये फ्लोएम है, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो फ्लोएम के अंदर आ गए, तो फ्लोएम में हो गया हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फूड है वो, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वाटर है वो फ्लोएम में कहां पर, सील ट्यूब्स में हो रहा है, ये सब सील ट्यूब्स में चल रहा है, और सील ट्यूब्स के आसपास क्या है, एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स, मतलब ये फ्लोएम है, सील ट्यूब है, इसके आसपास है कंपेनियन सेल्स, ठीक है, इसके आसपास क्या है, कंपेनियन सेल्स, ठीक है, सराउंडिंग सेल्स। और जब यहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है और बाहर लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, हमें पता है कि बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के कारण, ऑस्मोसिस में क्या होता है, इट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट तक उसका मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट कौन है, यहां पर वाटर, और सॉल्यूट कौन है, जो प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो देखो फ्लोएम के अंदर हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है और आसपास के जो सराउंडिंग सेल्स है उसमें लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, तो वाटर कहां से कहां मूव करता है, फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। तो वाटर जो है वो सराउंडिंग सेल्स में से फ्लोएम के अंदर मूव करेगा, ओके। सो द वाटर मूव्स इनटू द, वाटर मूव्स इनटू द फ्लोएम या इनटू द सील ट्यूब, ठीक है, वाटर फ्लोएम में मूव करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स, फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स, सराउंडिंग सेल्स में से वाटर फ्लोएम के अंदर मूव करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस, दिस क्रिएट्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक मतलब जो वाटर के कारण हो, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस जो किसकी वजह से है, वो हाइड्रो मीन वाटर, तो जो वाटर के कारण प्रेशर डिफरेंस होता है वो बन जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो टिश्यू है, जो मटेरियल है, अब फ्लोएम में, फ्लोएम के अंदर जो फूड है, ठीक है, जो फूड है, जो फ्लोएम के अंदर मटेरियल्स है वो अब मूव करेंगे, मटेरियल्स इन फ्लोएम,
फ्लोएम के अंदर जो मटेरियल्स है मूव्स कहां मूव करेंगे? ऐसे टिश्यूज में जहां पर क्या है, टू टिश्यूज विच हैव लो प्रेशर, जहां पर क्या है, लो प्रेशर है। तो फ्लोएम के अंदर जो मटेरियल्स है वो ऐसे टिश्यूज में चले जाते हैं, फ्लो करते हैं। क्योंकि फ्लोएम के अंदर वाटर आ गया, तो वाटर बहुत ज्यादा आने की वजह से फ्लोएम में और दूसरे टिश्यूज में क्या हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का डिफरेंस हो गया। ठीक है, मतलब वाटर के फ्लोएम के अंदर वाटर ज्यादा हो गया और दूसरे टिश्यूज में वाटर कम हो गया, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का, जो वाटर का प्रेशर है उसका डिफरेंस हो गया। तो फ्लोएम के अंदर जितने भी जो मटेरियल्स थे, जो फूड है, वो अब मूव करता है ऐसे टिश्यूज में जहां पर क्या हो, लो प्रेशर हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ द मूवमेंट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन फ्लोएम। ठीक है, जो मटेरियल्स होते हैं which are transported into the phloem, वो मटेरियल्स कैसे होते हैं, soluble product of photosynthesis। ठीक है, मतलब फूड जो क्या है, वाटर में soluble हो। अब इसके कारण क्या होता है, ये सारे मटेरियल्स किसमें चले गए, फ्लोएम में चले गए, जो फूड है वो फ्लोएम में चला गया। उसकी वजह से जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन था फ्लोएम में वो बढ़ गया। हमें पता है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, बट हमने रिवीजन के लिए लिख ली कि ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का मूवमेंट, कहां से, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तब देखो फ्लोएम में कंसंट्रेशन सॉल्यूट का ज्यादा हो गया और आसपास जो सराउंडिंग सेल्स है उनमें लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, तो वाटर बाहर से फ्लोएम के अंदर क्या हो गया, मूव हो गया। ये वाटर अंदर की तरफ मूव होने की वजह से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस बन गया, वाटर के प्रेशर का डिफरेंस बन गया। उसकी वजह से जो मटेरियल्स थे फ्लोएम में, वो फ्लोएम से निकल के ऐसे टिश्यूज में चले गए जिनमें लो प्रेशर है। Okay, so this is all with the transport of food and transport of water, and this is all with today's class.